Hi, good morning. Welcome to the day two of a CSET revision series. In yesterday's series, we discuss about the particular topic of percentage. आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में. ये डे टू है सीरीज का क्लास टू दैट्स अ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आपके सीसेट में काफी क्वेश्चंस आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से. Mostly they can ask the two questions or sometimes three questions from the ratio and proportion. But by chance in the 2024 there is a no question from the ratio. लेकिन तो it's a higher chance कि 2025 में there will be the more question from the ratio. So it's an important topic to do. Okay. So in this session we are going to conduct the UPSC PYQ. सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ some basic concept of ratio will also look at कि क्या basic concept use होते हैं in the ratio and proportion. तो वो सब जानेंगे. Okay, let's start with the ratio and proportion. In the case of the ratio, अगर हमारे पास given है ratio A ratio B, if there is a ratio given A ratio B, in that case the ratio we can write the A divided by B. उसको इस format में भी लिखा जा सकता है in the A divided by B. And if we are multiplying or divide the ratio, if we multiply and divide the ratio with with same number, then there will be the no change in the ratio. Then there will be the no change in the ratio. For example, if we are taking 2 by 5 as a ratio, if we are dividing and multiplying it by 4, it will be the 8 by 20 and it's equal to the 2 by 5. It will be 8 by 20 and it will be equal to the 2 by 5. So this is the first rule in the case of ratio. Hi, good morning Simran. Second case of ratio में आते हैं. In the second rule क्या होता है? Sometimes given to us A is to B, ratio of A is to B given है, and ratio to B is to C given है. Ratio of A is to B and B is to C is given. Let's consider and we need to find out here A is to B is to C क्या होगा. A is to B is to C क्या होगा. In that case we can use, let's multiply A is to B, A is to B with this B. First case में A is to B को इस B से multiply करेंगे. And in the second case we'll multiply the B is to C, we will multiply the B is to C with this B. इस B से हम B is to C को multiply करेंगे. We'll multiply the B is to C with the B. In this case we will find out A is to B is to B is to C. ये ratio हमारे पास आएगा. And in this ratio B is to B will be the same. B is to B same होगा. B is to B same होगा. Let's try with an example यहाँ पे. If 3 is to 2, A is to B is 3 is to 2 is equal to, then in the case let's 6 is to 4, 6 is to 5. A is to B is 3 is to 2, A is to B is 3 is to 2 and B is to C is 6 is to 5. In this case find out A is to B is to C क्या होगा. Let's see. In this case we will write 3 is to 2 will be multiplied by the 6 ratio, and the 6 is to 5, 6 is to 5 will be multiplied by the 2. 6 is to 5 will be multiplied by the 2 and 3 is to 2 will be multiplied by the 6. So we can write 18 is to 12. 18 is to 12 and the 12 is to 10. 18 is to 12 and the 12 is to 10. And this 12 is to 12. This 12 is to 12 is common. So we can write A is to B is to C is equal to 18, 12, 10. So we can write the A is to B is to C is 18, 12, 10. So this is the second kind of the information for the ratio कि ratio में क्या क्या use हो सकता है. Now let's come to the third one. In the case of the third one, in the case of the third, if the ratio is given A is to B and it's given ratio of C is to D, A is to B and the C is to D. In that case, B and C are known as the mean end. B and C are known as the mean end, and the A and D are known as the extreme end. A and the D are known as the extreme end. A and D is the extreme end and the B and C is the mean end. So here we can write the multiplication of A and D will be equal to the multiplication of B and C. So in this case the multiplication of A and B, A and D will be equal to the multiplication of the B and C. So this is the third thing in this ratio.
रेशियो में तीसरा चीज है, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। जब हम रेशियो की बात करते हैं, इन दैट केस जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द मिक्सचर एंड एलिगेशंस की भी बात यहाँ पे होती है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स गिवन है, उन लिक्विड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कुछ अमाउंट्स निकाला है, उसके बाद फिर मिक्स कर दिया गया, उस केस में किस तरीके से आप निकालोगे। देयर इज अ फोर्थ फॉर्मूला इन दिस रूट, देयर इज अ फोर्थ फॉर्मूला दैट वी कैन राइट x इंटू 1 माइनस y बाई एक्स रेज टू पावर n, 1x is to 1 minus y by x is to power n, which is equal to quantity of pure liquid remaining, quantity of pure liquid remaining, this will be the quantity of pure liquid। x क्या है यहाँ पे, x is the quantity of initial liquid, it is the quantity of initial liquid। y is the quantity of that is replaced quantity in each operation, this is the replaced quantity in each operations। And the number of time the operation performed, n is the number of time operation performed, n is the number of time operation performed। so this is the identity in the form of mixture and alligation, हम इसको mixture and alligation में यूज करेंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपीएससी में, 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं जो रेशियो से पूछे गए हैं। लेट्स सोल्व द क्वेश्चन नाउ। ये चार identities, the चार formula और the चार explanation will solve each kind of the question of the ratio, हर तरीके का क्वेश्चन सोल्व करेगा। तो कीप इन माइंड ऑल दीज फॉर्मूला फॉर द रेशियो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन करेंगे 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वी विल डू द each question of the ratio, हर एक क्वेश्चन हम करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज इन द यूपीएससी 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अ पर्सन हैज ओनली rest 1 rupee coin and the 2 rupee coins with the total number of the coins he has is 50, he is given the total number of coins, so we can write the total coins with the her is a 50 and the denomination is the 1 rupee and the 2 rupee, denomination is 1 rupee and 2 rupee, and the sum of the coin is 75 and the sum is equal to 75, total number of coins are 50, sum is the 75 and denomination is 1 and 2, then the number of 1 and 2 coins kitna hoga, then the number of 1 and 2 coins in the this context kitna hoga। Now we need to check from the option itself, 1 and 2 jahan pe bhi 75 sum आएगा, in the case of 1 and 2 वो आंसर हो जाएगा। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन, whenever we are solving any questions थ्रू द ऑप्शन, जब भी हम कोई क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करते हैं, ऑलवेज टेक अ मिडल ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले हम उसका मिडल ऑप्शन लेंगे, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि इससे ऊपर वाला वैल्यू आएगा या इससे नीचे वाला वैल्यू आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ मिडल वैल्यू के बाद ही वी विल मूव इट आउट। और ये मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम सम तब होता है जब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इन एनी काइंड ऑफ द दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑफ द कॉइन्स are equal, when the number of the coins are equal, they will give the maximum value, they will give maximum value, ठीक है। तो in this case we can find it out कि कितना होगा। Let's in the case of 25 and 25 ही लेते हैं, this is seems to be the middle value, this seems to be the middle value। If 1 rupee coins are 25, 25 is a 1 rupee coin, so total sum is 25, and the 2 rupee coin is 25, in that case total sum is 50, so it will give us a 75, and through the only a single option try we can find out, so 75 is the answer। 75 रुपये उसके पास है, 25 सिंगल 1 रुपी कॉइन है, 25 इज द 2 रुपी कॉइन, सो 25 इज द आंसर। अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं तो इन दिस केस 30 विल बी द 1 रुपी कॉइन एंड द 40 विल बी द 2, इट विल गिव द 70। इन दिस केस देखते हैं, तो इट्स गिव द 70 रुपी 2 कॉइन्स एंड द 15 रुपी 1, 85 देगा यहाँ पे, इट विल गिव 65, so 25 पे it will have the 75 will be the answer here, so the answer is D। next question पे आते हैं। next question is from the 2012 examination, the question is saying the glass of equal volume, the question is here, the glass of equal volume are respectively, there are two glasses, they are the two glasses of the equal volume, and half and the 3/4 of the filled with the milk, एक ग्लास का हाफ मिल्क के filled है और दूसरे ग्लास का 3/4 filled with the milk, one is half filled with the milk and another is 3/4 with the milk, so we can write here milk quantity,
मिल्क क्वांटिटी इन द ग्लास 1 इज 1/2, मिल्क क्वांटिटी इन द ग्लास 2 इज 3/4। मिल्क क्वांटिटी ग्लास 1 में कितना है, 1/2 है। Milk quantity in the glass 2 is a 3/4. They are then filled with the brim by adding the water. Now the water is added into both the glasses. दोनों ग्लासेस में पानी डाला गया, तो स्पेस कितना बचा पहले क्लास में, पहले क्लास में स्पेस हाफ ही बचा है, तो हाफ विल बी द वाटर। सेकंड केस में कितना बचा है, 1/4 बचा है, दैट्स 1/4 विल बी द वाटर। नाउ वी नीड टू टेल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन दिस वेसल। अब इन दोनों ग्लास को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों ग्लास के लिक्विड्स को मिक्स किया गया। नाउ वी नीड टू टेल कि रेशियो कितना होगा इन दोनों केस में। अगर हम ऐड करते हैं, इफ वी आर एडिंग द वाटर इट विल बी गिव अस द 3/4। वाटर दोनों को ऐड करेंगे तो 3/4 आएगा। जब हम मिल्क को ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस द 5/4, इट विल गिव अस द 5/4। तो हमें रेशियो बताना है मिल्क टू वाटर, सो 5/4 is to 3/4, 5/4 is to 3/4, this is the 5/4 and this is the 3/4, so 5/4 is to 3/4, so 4 to 4 we can cancel it out and the answer will be the 5:3। तो आंसर 5:3 आएगा, मिल्क टू वाटर रेशियो इज द 5:3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सबसे आपको पहले एक हैबिट बनाना है, यू नीड टू मेक एन हैबिट कि जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन को नोट करना जरूरी है। जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, प्लीज नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन को नोट करके सी कि क्या निकालना है आपको, क्या क्या गिवन है। आप लोग स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली पढ़ते हैं बट यू आर नोटिंग डाउन द इन्फॉर्मेशन। जब तक इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना, बट इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद इट्स बिकम इजी टू सोल्व द क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। In the question number 3, and they are saying in a rare collection, there are one gold coins. In a rare collection, the one gold coin for every three non-gold coins. They are saying there is a one gold coin with the every three non-gold coin. With the every three non-gold coin. If the 10 more gold coins are added to the collection, the ratio of the gold coin to non-gold coin is 1:2. Now they added the 10 new gold coins to the collection and the ratio become the 1:2। ratio कितना बन गया, 1:2। based on the information the total number of the coin in the collection now becomes, the total number of coins कितने हो जाएंगे collection में, वो हमें बताना है in this case। अगर हम context लेते हैं, options के through ही जाएंगे, we will go through the options। 10 मोर गोल्ड कॉइन्स ऐड हुए, तो गोल्ड कॉइन्स ऐड होने से पहले देयर विल बी द नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। तो अगर हम इनमें 10-10 माइनस करके देखते हैं, -10 -10 -10 -10, तो ओरिजिनली कॉइन इन द फर्स्ट केस अगर हम बोलें तो 80 होंगे, ओरिजिनल कॉइन द सेकंड केस 50 होगा, यहाँ पे 70 होगा और यहाँ पे 40 होगा। अगर हम इनको रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं 1:3 के रेशियो में, जो इनिशियल रेशियो है, जो इनिशियल रेशियो है 1:3 कि फॉर द एवरी वन गोल्ड कॉइन देयर आर 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स, ये इनिशियल रेशियो है। तो इनिशियल रेशियो में अगर मैं 80 को डिवाइड करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू डिवाइड द 80, तो आई कैन डिवाइड द 20 आर द गोल्ड कॉइन एंड 60 आर द नॉन गोल्ड कॉइन। 80 को डिवाइड किया जा सकता है, 50 को इस तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 50 को डिवाइड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा 12.5 एंड द 37.5, तो कोइन हाफ तो नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, इन द केस ऑफ 70 के केस में भी यही चीजें बनेगी, वी कैन नॉट डिवाइड द कॉइंस। इन द केस ऑफ द 40 भी यही सिचुएशन होगा कि वी कैन नॉट डू। इन द केस ऑफ द 40 अगर आप देखेंगे तो 40 के केस में आज आएगा 10:30, 10:30। दिस इज फोकसिंग ऑन दिस वन कि हाँ, वन गोल्ड कॉइन 3 के साथ हो जाता है। लेकिन जब हम इसमें 10 ऐड करते हैं, टोटल 50 कॉइन्स, दैट 50 कॉइन्स कैन नॉट बी शेट इनटू द फॉर्मेट ऑफ 1:2। इन 50 कॉइन्स को हम 1:2 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। 50 कॉइन्स को 1:2 के फॉर्मेट में लिखना होगा तो इट विल अगेन द हाफ ऑफ कॉइन्स को इंक्लूड करना होगा। तो दिस 50 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, दिस 60 इज एलिमिनेटेड, 80 इज एलिमिनेटेड। नाउ लेट्स चेक द 90 को वेरीफाई करते हैं। 90 इन द इनिशियल केस जब 80 कॉइन्स हैं उनके केस में इट्स गिविंग द रेशियो ऑफ 20:60, दैट इज द 1:3 ओरिजिनल दे रहा है, दिस गिविंग द ओरिजिनल रेशियो 20:60। एंड 90 के केस में इट्स गिवन द 1:2, दैट्स द 30:60। 90 के केस में 30:60 देगा, 80 के केस में 20:60 देगा। सो इट्स वेरीफाइंग ऑल द डेटा गिवन इनटू द स्टेटमेंट। तो 90 कॉइन्स है जो वेरीफाई कर रहे हैं पूरे डेटा को जो स्टेटमेंट्स में गिवन है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए हियर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए हियर। जब भी आप ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस करते हैं, व्हेनेवर यू आर डूइंग द क्वेश्चन थ्रू द ऑप्शंस, तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आप सारे के सारे वेरिफिकेशन करते हो जो भी क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिसके बारे में भी बात हो रही है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Out of the 120 application, there are a total 120 applications. Out of these 120 applications, 70 are males. तो यहाँ पे given है 70 are males, so remaining 50 are the females. 70 are the males and the remaining 50 are the female here. 80 has a driving license. तो total 120 है, इनमें से 80 are having the driving license. 80 लोगों के पास driving license है. 80 are having the driving license. What is the ratio between the minimum to the maximum number of male having the driving license? So minimal and the maximum of the males, minimum and the maximum of the males are having the driving license, वो हमें बताना है. अगर हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम केस पे जाते हैं, मैक्सिमम केस बिकॉज दे आर 70 मेल्स, मैक्सिमम केस में 70 मेल है एंड टोटल 80 ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वी कैन राइट द मैक्सिमम कैन बी द 70 मेल, ऑल मेल आर हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस, सबके पास डीएल है, सारे मेल्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस है. मिनिमम केस में जाते हैं तो मीन्स वी कैन कंसीडर ऑल द फीमेल आर हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस. अगर 50 फीमेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो टोटल ड्राइविंग लाइसेंस कितने बचे, 80 में से 50 गया 30, तो 30 ड्राइविंग लाइसेंस मेल के पास बच जाएगा. तो 70 इज द मैक्सिमम केस एंड 30 इज द minimum case where they are having a driving license. So 7 to 3 is the answer. 7 is the maximum case and the 70 is the maximum case and 30 is the minimum case in the case of the driving license. So it's become a very easy question. अगर आप इस तरीके से इसको बना लेते हैं, आप इसको इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं, तो इट विल शो यू क्लियरली कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो द आंसर इज 7 to 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Next question is about the monthly income. Is given the monthly income, so the Peter and the Paul are in the ratio of 4:3. Monthly income given in the 4:3. Let's write down the Peter and the Paul. The monthly income are in the ratio of 4:3 and their expenditure are in the ratio of 3:2. Their expenditure are in the ratio of 3:2 and their savings is also given. The saving is 6,000 rupees. Their saving is 6,000 rupees. Let's consider the Peter is earning X and the Paul is earning Y. Peter is earning X and the Paul is earning Y. And the expenditure is also 3:2. The expenditure कितना है, 3:2 है. तो इस केस में जब हमें पता है अर्निंग भी दिया है, एक्सपेंडिचर भी दिया है और सेविंग भी दिया है, तो we can write here 4x is the Peter earning, 3y is the Peter expenditure and it is given to 6,000, equal to 6,000 दिया क्योंकि ये सेविंग है. This is the saving, this is the income and this is the expenditure. Similarly, in the case of Paul, 3x is the earning. In the case of Paul, 3x is the earning and the 2y is the expenditure and the saving is here again the 6,000. Saving is again here the 6,000 and this is just according to the question. जो क्वेश्चन में दिया हमने वही लिखा, अभी तो कुछ नहीं किया. 4x is the earning of Peter, 3y is the expenditure of the Peter and the saving is 6,000. 3x is the Paul का earning है, 2y Paul का expenditure है, 6,000 is the saving. तो x हमने consideration किया, x is the earning and the y is the expenditure. Y is the expenditure. तो इन equation को अगर हम माइनस करते हैं, let's multiply the first equation with the 2. Let's multiply the first equation with the 2 and the second equation with the 3. तो variables equivalent हो जाएंगे. 8x minus 6y is equal to the 6,000. Second will be the 9x minus 6y is equal to the 12,000. 3 is 18,000. 18,000 and here it become the 12,000. Here it will become the 12,000. So in this case plus माइनस प्लस माइनस, तो इच कैन बी डिडक्टेड, ये हट जाएगा. तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6,000. माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6,000. माइनस से माइनस कट जाएगा तो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6,000. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6,000. रेशियो में कितना गिवन है इनकम, 4:3. तो 6,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 24,000 एंड 6,000 इंटू 3 इज इक्वल टू द 18,000. 6,000 into 3 is equal to the 18,000. So 24,000 and 18,000 are the income of the Paul and the Peter. So the answer will be 24,000 and the 18,000. This is the one method कि आप मैथमेटिकली किस तरीके से सोल्व करेंगे. अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहें इस क्वेश्चन में तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. आपको ऑप्शन में जाना है किस किस इनकम का रेशियो 4:3 आ रहा है.
4:3 फर्स्ट में आएगा, इसमें भी 4:3 आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन 34 इन 26,000 में 4:3 नहीं आ रहा। तो एक ऑप्शन तो यहाँ से ही आप एलिमिनेट कर देंगे। जब हम इनसे 6,000 एज अ सेविंग माइनस करेंगे, अगर 6,000 एज सेविंग माइनस करते हैं तो यहाँ पे 18,000 आएगा, यहाँ पे 12,000 आएगा। तो दिस इज एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिलेगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिलेगा। तो आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन ऑप्शंस के थ्रू भी ऐसे क्वेश्चंस में जा सकते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन द क्वेश्चन रिपीटेड, अगर आप देखोगे तो इक्वल ग्लास ऑफ सेम वाटर, ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया जो 2011 में पूछा गया था, तो यूपीएससी ने 2015 में फिर से इसको रिपीट किया। लेट्स डू दिस क्वेश्चन आल्सो। The first glass is having the 1/3 of milk and the second glass is having the 1/4 of milk. So this is the ratio of milk given. In the second case, they filled up with the water, so it's the having the 2/3 of water. It's having the 2/3 of the water. Then 1/4 it's having a 3/4 of the water. This is the ratio of water. The content are mixed in the pot. अब इनके content को mix कर दिया गया है. What is the ratio of the milk and water in the pot? Same question, but the number are changed. Now let's add the milk and the water. Milk को add करेंगे तो 1/3 plus 1/4. Let's give us a 12. 4 plus 3, that is the 7/12. The ratio of the milk is 7/12. And the ratio of water, let's calculate the ratio of water as well. 2/3 divided by 3/4. It's also the 12. 3, 4, 8, and 9. 17/12. 17/12. तो रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर हमें निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू 7/12 रेशियो 17/12। 7/12 रेशियो 17/12। तो वी कैन 12 से 12 हट जाएगा, तो आंसर विल बी द 7:17। आंसर इज द 7:17, आंसर इज ए। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको नंबर्स अलग दिए गए हैं, तो यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी वर्क थ्राइस एज द फास्ट एज क्यू। Next question is P work thrice as the fast as Q. Means we can write P work thrice as the fast as Q. So P is equal to 3Q. Information given है. Where P and Q together can work 4 time of R. P and Q together work 4 time of R. P और R, P और Q मिलके 4 टाइम ऑफ R है। तो अगर हम P का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर ऐड कर देंगे, वी कैन ऐड द वैल्यू P हियर, तो इट विल बी इक्वल टू 3Q प्लस Q is equal to the 4R and the 4Q is equal to the 4R. Means the efficiency of the Q and R is same. Means the efficiency of Q and R is same. If the efficiency of Q and R is same, so we can write the P efficiency is 3, efficiency of Q is 1, and the efficiency of R is 1. So their work and the ratio of earning should be in the format of 3:1:1. That is the answer A. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2017 में यूपीएससी ने पूछा था रिलेटेड टू द रेशियो एंड देयर शेयर। ये शेयर के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, हर बार हर पेपर में एक कोई कुछ ना कोई क्वेश्चंस पार्टनरशिप से लेके शेयर से लेके पूछा है यूपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यू कैन सी द क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन। The monthly income of the X and Y are 4:3, expenses are 3:2, save the 6,000. Same question without any change, कोई भी चेंज नहीं है। सेम डिवीजन इनकम का है, सेम डिवीजन एक्सपेंडिचर का है, सेम सेविंग का है। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया था, अगर आप देखेंगे यही तो क्वेश्चन हमने सोल्व किया। दिस वाज आस्क्ड इन 2015 द सेम क्वेश्चन, अगर बस ऑप्शंस को ऐड करके दे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन को ऐड करके दिया है, तो इसीलिए ये वाले मेथड से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जहाँ पे हमने एक्स और वाई कंसीडरेशन किया है। अदर थिंग्स आर द सेम, अदर थिंग्स आर द सेम, नो चेंज इन दिस क्वेश्चन। सो द आंसर इज 42,000 here. So answer is 42,000 here. So you can see how the UPSC repeat in the CSET. यूपीएससी में भी किस तरीके से सीसेट के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। तो आपके लिए एक शॉकिंग होगा कि 2023 का जो पेपर था, 2023 का पेपर यूपीएससी में सबसे टफ पेपर कंसीडर किया गया है। 2023 का पेपर सबसे टफ कंसीडर किया गया है। उस पेपर में 25 से 28 क्वेश्चन, 25 to 28 क्वेश्चन वर रिपीटेड इन दैट पेपर। 25 to 28 क्वेश्चन वर रिपीटेड। तो मीन्स अगर आप रिपीटेशन यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही अच्छे से कर लोगे, लास्ट 10 ईयर्स को अच्छे से कर लोगे, तो आपको कट ऑफ तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाना है। आपका कट ऑफ तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाना है, और उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे हम, देन द वीवाईक्यू के जो क्वेश्चन रिपीट हुए उनको करेंगे, एंड वी कैन इजीली स्कोर द मोर देन 80 मार्क्स इनटू द
सी सेट। तो वही तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे, वही चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दे कैन प्रिपेयर टू द पॉइंट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या एग्जाम में आता है, किस तरीके से सोल्व करना होता है, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर विद देम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोटल लिक्विड contain 20 liters of liquid A. So liquid A is 20 liter. 4 liters of the liquid A is taken out and replaced by the same amount of liquid B. तो liquid B से जब एक्सचेंज किया गया तो फर्स्ट एक्सचेंज 4 लीटर से एक्सचेंज किया गया, तो फर्स्ट एक्सचेंज इज द 4 लीटर। तो इस केस में बताया गया है कि अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम लिक्विड्स, मींस ऑपरेशन जो है वो दो बार परफॉर्म किया गया है, टू टाइम इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है। नाउ वी नीड टू टेल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू बी। अब हमें रेशियो बताना है क्वांटिटी का ए टू बी कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने 2020 में पूछा है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक फॉर्मूला बताया था टू कैलकुलेट द रेशियो। तो कैलकुलेट द रेशियो एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स रेज टू पावर एन, 1 इंटू वाई बाई एक्स रेज टू पावर एन। इस केस में क्या होगा, 1 इंटू रेज टू पावर वाई बाई एक्स रेज टू पावर एन द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल लिक्विड, इट विल गिव अस द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल लिक्विड दैट इज द ए। तो ये हमें प्योर लिक्विड ए की क्वांटिटी देगा, तो उसके बाद हम इसको निकाल सकते। लेट्स चेक इट आउट। x is 20 here, x is given to us 20 and 1 minus y, कितना क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं 4, they are replacing the quantity 4, 4 by 20 raised to power n, 4 by 20 raised to power n, so we can write 20 into 1 minus 1 by 5 raised to power n, it will give us 20 into 4 by 5, it will give us to, it will give us to 20 into 4 by 5 raised to power 2, because the value of n is 2 here, क्योंकि ऑपरेशन दो बार परफॉर्म किया गया, वैल्यू ऑफ n is 2 here, so we can write 20 into 16 by 25, हमने उसको स्क्वायर किया, 4 by 5 को स्क्वायर करने के बाद this will give us the 20 into 16 by 25, so that will be equal to the 64 by 5, this is equal to 64 by 5, that is equal to 12.8, that is equal to 12.8, means the 12.8 is the original liquid, that's a 12.8 liter is the original liquid, that is A। और B का कितना रेशियो बच गया 12.8 में से, 20 में से माइनस करेंगे 12.8 को, लेट्स सब्ट्रैक्ट द 20 में से 12.8, इट गिव्स द 7.2, means the liquid A, means the liquid A is the 12.8 and liquid B is the 7.2, liquid A is the 12.8 and the liquid B is the 7.2 here। जब इनको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, when we are converting this into the ratio, so this give us the 16:9, this gives the 16:9, जब 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 8 9 is 72 and 8 16 is 128, so this will give us the answer 16:9, so the answer of this question is C, 16:9। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे करना होता है, हाउ वी कैन सोल्व द रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, तो यू कैन डायरेक्टली सोल्व इट। ओके, आपको फॉर्मूला बेस पे जाना है एंड सिंपली यू नीड टू ऐड कितना क्वांटिटी को रिप्लेस किया गया है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है और कितने टाइम उसको रिप्लेस किया गया, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum of 2500 is distributed among the x, y and z. Sum of 2500 is distributed among the x, y and z in the ratio of 1:2, 3:4 and the 5:6. What is the difference between the maximum share and the minimum share में हमें difference बताना है, the difference between the maximum share and the minimum share। Let's make this ratio simple। सबसे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे नॉर्मल में कि रेशियो को जब मल्टीप्लाई किया जाता है सेम नंबर से तो विल रिमेन द सेम, तो लेट्स मल्टीप्लाई ऑल द रेशियो विद द 12, क्योंकि 642 का अगर आप एलसीएम लोगे 12 है तो 12 इजिली डिविजिबल हो जाएगा सबसे। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 1/2 इट विल गिव अस 6, 3/4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव अस 9 एंड 6/12 से करेंगे तो इट गिव अस 10, so the ratio now become the 6:9:10, ratio becomes the 6:9:10। अगर मैं इन सब रेशियो को ऐड करता हूँ it will give us the sum of 25, it will give us the sum of 25 and 25 is equal to 2500, तो 25 है इसके इक्वल ही होगा 2500 के, क्योंकि सब रेशियो को ऐड किया गया तो ओरिजिनल अमाउंट देगा, देन द ओरिजिनल अमाउंट इज 2500।
So for the each ratio there is a 100 rupee. For the each ratio there is a 100 rupee. So 100 into 6 will give us the 600. 100 is to 9 will give us the 900, and 100 is to 10 will give us the 1000. 100 is to 10 will give us the 1000. उनका sum 2500 के equal आना चाहिए. So you can see here 1000, 900 and 600 is given 2500. और यहाँ पे हमें बताना है what is the difference between the maximum share and the minimum share. 1000 is the maximum share, 600 is the minimum share. So 1000 minus 600, 1000 minus 600 will give us the 400. So the 400 is the answer. The difference between the minimum share and the maximum share. कि minimum share और maximum share में कितना difference है, that's a 400 here. This was the question asked by the UPSC in the 2020. Next question पे आते हैं. Next question is how many different sums can be formed. This is the question of permutation and combination. ये by mistaken add हुआ है. We will do it later on. लेकिन इसको भी आप कर सकते हैं. सम दिया गया है कि 50, 100, 200, 500 एंड 2000. आपको 5 डिनोमिनेशन दिए गए हैं. एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन आपको एक बार में सिलेक्ट करने हैं. तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? 5C3 से करेंगे या 5C1 से करेंगे, तो टोटल ऐड करेंगे तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं थ्रू द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. जब हम उस चैप्टर को करेंगे we will do it this question. Next question पे आते हैं. Next question is related to there are 3 points PQR on a straight line. अगर हम देखते हैं there is a straight line, that's a PQR. There is a straight line of PQR. अगर हम PQR में बात करते हैं तो we can write here. हम इस straight line को draw कर लेते हैं. There is a P, there is a Q and there is a R. There is a P, there is a Q and a R on a straight line such that PQ is to QR is 3:5. PQ is here, PQ is here 3 and QR is here 5. PQ is to QR is equal to 3:5. This is the first situation. दिया हुआ है कि आपको 3:5 है. If the n is the number possible value of PQ into PR, तो अगर हम PQ और PR का रेशियो निकालना है, PQ और PR का रेशियो निकालना है, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो PQ और PR का रेशियो इन दिस केस तो आ जाएगा 3:8. इन द फर्स्ट केस इट विल बी द 3:8. जब हम नॉर्मली निकालते हैं PQ एंड QR का केस, इट विल बी द इन द फर्स्ट केस इट विल बी द 3:8. जबकि सेकंड केस में हम जब पी क्यू इंटू क्यू आर का केस निकालते हैं, डेट विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इफ वी आर फाइंडिंग आउट द सेकंड केस, in this case we can shuffle the numbers. That will be the R, here it will be the P and here it will be the Q. R, P and Q हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P Q R को, because there is a 3 lines P Q R on a straight line पे given है. P Q R they are giving on the straight, there are 3 points P Q R that's on the R, P and the Q. हम कहीं पे भी उनको assume कर सकते हैं. If the P Q is given 3, अगर P Q 3 given, so we can write P Q is 3 here and Q R is 5. Q R is 5 and this complete is 5 given here. Q R is equal to 5. This is the 5 here. तो ये हमें given है. PQ is equal to the 3 and the QR is equal to the 5. तो हमें बताना है PQ is to PR कितना होगा. यहाँ पे PQ कितना है? PQ is 3, तो PR कितना बचेगा? 2. तो it can be equal to the 3:2. It can be equal to the 3:2. So there can be a 2 case possible. One is the 3:8 and second is the 3:2. जब इससे ज़्यादा केस कोई भी नहीं बनता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू ड्रॉ द लाइन्स को ड्रॉ करें और उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें. तो पी क्यू इज टू पी आर इज इक्वल टू 3:8 एंड 3:2. दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे. ओनली द 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था. एन अमाउंट ऑफ अ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू एंड आर. कंसीडर दैट ए गेट द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू. तो जो मनी है P प्लस क्यू प्लस आर है, टोटल सम है, तो P को जो शेयर मिलेगा डेट विल बी इक्वल टू द P प्लस क्यू प्लस आर. Q को जो शेयर मिलेगा Q P प्लस क्यू प्लस आर एंड जो R को शेयर मिलेगा R डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू प्लस आर. तो R को ये शेयर मिलेगा. तीनों का जब शेयर्स मिलेंगे तो वी कैन डिवाइड कि टोटल सम और P को कितना मिलेगा उस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज A गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस आर. ए को मैक्सिमम शेयर मिलेगा. दिस इज द शेयर ऑफ ए, दिस इज द मैक्सिमम शेयर ऑफ बी, दिस इज द मैक्सिमम शेयर ऑफ सी. एंड ए गेट द मैक्सिमम शेयर इफ द पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर. अगर पी ग्रेटर देन है क्यू प्लस आर से, if the p is greater than q plus r, so from the equation we can find out p is greater than q and the p is greater than r as well.
तो ये सिचुएशन हमें बताता है कि पी क्यू से भी ज़्यादा है और पी आर से भी ज़्यादा है। जब पी क्यू से भी ज़्यादा है, पी आर से भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली द ए विल गेट द मैक्सिमम शेयर। तो इस केस में ए को मैक्सिमम शेयर मिलेगा। So in this case, A will get the maximum share. When we're coming to the second case, the second case is P gets the minimum share if R is less than P plus Q. P get the minimum share if the R is less than P plus Q. तो एक कंसिडरेशन लेते हैं, लेट्स P एक वैल्यू कंसीडर करते हैं 2, 3 एंड 4। वैल्यू कंसीडर करते हैं 3, 2, 3 एंड 4। Here is the P, here is the Q, here is R. If R is less than the sum of P plus Q, this is ये स्टेटमेंट में बोला जा रहा है R is less than sum of P plus Q. R is 4 here. Sum of P plus Q is 2 plus 3. 4 is less than 5. It's following the condition. ये condition को तो follow कर रहा है. But in this case, they are saying it's get the minimum share. लेकिन minimum share तो नहीं मिलेगा. Share तो maximum मिलेगा क्योंकि value of R is 4. Value of R is 4 जो सबसे ज़्यादा है PQR के केस में, it will get the maximum share, not the minimum share. So the second statement is wrong. First statement is right. So the answer of this question will be 1 only. So the answer of this question will be 1 only. Clear है? Okay. Now let's come to the next question. Next question, the ratio of a two-digit natural number, the ratio of a two-digit natural number A formed by reversing its digit is 4:7. जब भी हम टू डिजिट नेचुरल नंबर की बात करते हैं, फर्स्ट प्लेस पे एक टेंथ प्लेस पे बात करेंगे। एक्स वाई अगर हम 10 डिजिट नेचुरल नंबर मानते हैं, टू डिजिट नेचुरल नंबर मानते हैं, तो इन दिस केस टेंथ प्लेस पे वी कैन राइट 10x, ऑन द फर्स्ट प्लेस वी कैन राइट द y, ऑन द फर्स्ट प्लेस वी कैन राइट द y बिकॉज टेंथ प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो 10xy, जब इसको रिवर्स करेंगे इट विल गिव अस द 10y प्लस एक्स, जब इसको रिवर्स करेंगे इट विल गिव अस द 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन में बोला गया है जब इनको डिवाइड करते हैं, व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस वन वी आर गेटिंग द रेशियो 4:7, वी आर गेटिंग द रेशियो 4:7, ये क्वेश्चन ने बोला है। द रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर्स टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट, टू डिजिट नेचुरल number formed by reversing it and digits is 4:7, the ratio is 4:7, the number of such pairs, कितने pairs होंगे वो हमें बताना है, the number of such pair will be। तो अगर एक एक्स वाई था तो उसको रिवर्स करके हमने वाई एक्स बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस लिखे हैं। नाउ लेट्स सी 70x इज प्लस 7y, 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x, 40y प्लस 4x। तो इन दिस केस वी कैन राइट 70x minus 4x is equal to 40y minus 7y. It will give equal to 66x and the 33y. 63x and 33y. X by y is equal to 1 by 2. X by y is equal to the 1 by 2. तो हमारे पास x by y की वैल्यू कितना आ गया, 1 by 2 x by y की वैल्यू आ गया। इफ द वैल्यू ऑफ x by y का वैल्यू 1 by 2 है और x by y क्या है, दिस नंबर, एक्स वाई इज द नंबर, एक्स वाई इज अ नंबर। तो ऐसे नंबर्स देखने हैं इनके रेशियो 1/2 आएगा। तो सबसे आसान नंबर मैं देखता हूँ तो वो मेरे पास आता है 12, जो 1/2 की वैल्यू में आएगा। दैट्स द फर्स्ट नंबर इज द 12, इट इज द एक्स, इट इज द वाई एंड द रेशियो इज 1/2। जब सेकंड नंबर की बात आती है तो मैं 12 का ही डबल कर लूंगा, तो इट विल बी 24। तो 24 की बात करेंगे तो इट विल ऑल्सो गिव अस द रेशियो 1/2, 2:4, दैट इज द 1/2। 48 की बात करेंगे, 48 is also give us the 4:8, that is the 1/2। और एक और नंबर आता है जो सेम कैटेगरी में आता है, that is the 36, that is the 36, 3 divided by 6, that will also give us the ratio 1/2। means these are the only four numbers, means these are the only four numbers that will give us in the reverse ratio 4:7। 4:7 का रेशियो देंगे रिवर्स करने के बाद भी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर 12 और 21 को रिवर्स करेंगे, अगर हम 12 का रिवर्स क्या होगा 21, 12 का रिवर्स क्या होगा 21। जब इनका रेशियो निकाला जाएगा 12:21 का, तो दैट विल बी इक्वल टू द 4:7, दैट विल बी इक्वल टू द 4:7। तो यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है कि ये नंबर सही है या नहीं है। सिमिलरली आप 24 एंड 42 का भी आप कर सकते हैं। अगर आप 24 एंड 42 का करना चाहते हैं, 24 एंड 42, 24 एंड 42 का रेशियो लेंगे तो इट विल बी 6 से डिवाइड होगा, 6 4 जा 24 एंड 6 7 जा 42, अगेन इट्स 4:7। तो ये वेरीफाई भी कर रहा है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द 4, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द 4, आंसर यहाँ पे 4 आएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2019।
So and these are the questions. Yes, these are the old questions of the UPSC prelims 2025. रेशियो के क्या क्या क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं रेशियो से। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा सी सेट में, दैट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से काफी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट सेशन होगा, कल सुबह 10 बजे ही होगा। प्लीज शेयर दिस सेशन को मल्टीपल टाइम शेयर करें। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग द करंट अफेयर सेशन ऑफ एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड द हिस्ट्री। करंट अफेयर सेशन ऑफ एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड हिस्ट्री इन द नेक्स्ट 3 डेज, ये तीनों के तीनों हम कवर करेंगे। After that, I will start a series related to the top 50 PYQ, top 50 PYQ जो रिपीट हो सकते हैं इन द यूपीएससी। उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर सब्जेक्ट के, और कौन से 50 PYQ जो हैं जो रिपीट हो सकते हैं यूपीएससी में, उनके पीछे लॉजिक क्या है रिपीट होने का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज रहेगा प्रिपरेशन का, जो फोकस करेगा एग्जाम ओरिएंटेशन पे, एग्जाम के लेवल पे, किस तरीके के पीवाईक्यू आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, और सी सेट तो हम कर ही रहे हैं। तो प्लीज रिवाइज इज कंटिन्यूसली आप, एंड दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आप अच्छे से करें। माई सेल्फ देवेंद्र सैनी, एंड लेट्स मीट इनटू द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।